captain of Indian cricket team, your favorite Virat Kohli. He once said that self-belief and hard work will always earn you success. Same here, we have the leader of our school. Let us hear from principal's desk. जन्नते बाग में मोहम्मद जन्नते बाग में मोहम्मद मुस्कुरा के आएंगे रहमत के गिरेंगे फूल हम उठाते जाएंगे। आइए सुनते हैं सर को। Good morning, everyone. Honorable Madam Mrs. P.B.S. Husa, Deputy Commissioner, KVS RO Kolkata, Dr. S. Bose and Mrs. Sangeeta Roy, Assistant Commissioner, KVS RO Kolkata, most respected Chief Guest of the occasion, respected Vice Principal, Kendriya Vidyalaya No. 1, Kachrapara, all learned teachers, my dear student, and all the viewers. Let me extend my warm gratitude and appreciation for the chief guest of the occasion, our very own Mr. Gorachand Chakravarti, who had passed out class 10th from KV number 1 Kachrapara in 1989. After that joined KV Barakpur Army. From class 7 participated in athletics, national events, shot put and discus throw. Won gold medal twice and silver one. Currently serving as a teacher in West Bengal Government School and has been actively associated with various games and sports association of the state. For his presence in our Vidyalaya on this pioneering celebration of National Sports Day today, the 29th of August 2020. As I already mentioned, it is a great moment of pride for the entire country that we have started celebrating National Sports Day commemorating the birth anniversary of the great hockey legend Dhyan Chand, the nation's greatest hockey player of all time, who brought international name and fame for India, being institutional in winning the field hockey event in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964 and 3 golds from the Olympics. प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जैसे ना भारत में ना विश्व में इस तरह के ख्याति प्राप्त किए। मेजर ध्यानचंद के बचपन के दिनों को देखें तो हम उनमें खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते थे। हॉकी के खेल में जन्मजात प्रतिभा उनके पास नहीं था, लेकिन उनके सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के द्वारा इन्होंने यह प्रतिष्ठा अर्जित किए थे। पूर्व कप्तान ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। मेजर ध्यानचंद इतना अच्छा ड्रिबलिंग करते थे कि गेंद दिखाई नहीं देता था और उसके स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी, इसलिए लोग इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। आज मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल कूद के महत्व को आप सभी के सामने उजागर करना चाहता हूं। Games and sports make us healthy and fit for work,
Games and sports are very necessary in our life. It makes us fit, active, fresh, and social. They teach us as lesson of coordination, duties, and discipline. They teach us a lesson for brotherhood and national unity. Games and sports have much value in development of body. Is as important as that of a mind. A healthy mind dwells in a healthy body and keep the body fit and active. ऐसे तो गेम्स कई तरह के होते हैं, लेकिन खेलने के स्थान के आधार पर इसको मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम के अंतर्गत ताश, लूडो, कैरम बोर्ड आदि ये मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। आउटडोर के अंतर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल आदि। इसमें बैडमिंटन एंड टेनिस ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों के अंतर्गत आता है। ये सभी गेम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में काफी सहायक है। इन दोनों में बस इतना अंतर है कि आउटडोर खेलों के लिए बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। यह खेल हमारे शरीर के फिटनेस एवं तंदुरुस्त बनाए रखने में सहायक है, जबकि इंडोर गेम में ऐसे बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती। यह घर के आंगन कहीं भी खेला जा सकता है। इन खेलों में सभी वर्गों के लोग, चाहे बालक, युवा और चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो, सभी अपनी रुचि रखते हैं। आउटडोर खेल हमारे शारीरिक विकास में लाभदायक है, वहीं दूसरी ओर शरीर को स्वस्थ, सुडौल तथा सक्रिय बनाए रखते हैं। जबकि इंडोर खेल हमारे दिमागी स्तर को तेज करते हैं तथा साथ ही मनोरंजन का उत्तम स्रोत भी है। जीवन की रफ्तार और व्यस्तम दिनचर्या में खेल ही एकमात्र साधन है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर विकास में सहायक है या हमारे शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनाए रखता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। आँखों को में देखने की शक्ति में वृद्धि होती है, हड्डियां मजबूत होती है, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन तंत्र में वृद्धि होती है। खेल एक व्यायाम है जिससे हमारे दिमागी स्तर का विकास होता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, आलस्य को दूर कर शरीर को ऊर्जावान बनाती है और कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ जीवन ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इस तरह खेल हमारे जीवन को सफल बनाने में सहायक है। यह एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यह कहावत आज निराधार हो गई है। माता पिता अब जान गए हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए और इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होता है। खेल अभी जीवन जीने का आधार माना गया है। भारत सरकार खेल में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करती है। अर्जुन और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार इसी श्रेणी में आते हैं।
महिलाओं ने इस दिशा में नाम रोशन किए हैं। पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल एवं सानिया मिर्जा जैसी महिलाओं ने खेलों के विभिन्न वर्गों में सफलता अर्जित की है। अब वर्तमान देशवासियों की बारी है। अधिक से अधिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनावें और देश का नाम रोशन करें और भारत का गौरव बने और भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करें। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि विभिन्न खेलों के प्रचार प्रसार में हम सभी अपना बहुमूल्य योगदान देंगे तथा भारत को सभी खेलों में विश्व का सिरमौर बना देंगे। यह कार्य तभी संभव हो पाएगा जब सभी खेल भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। विशेष रूप से विद्यार्थियों से हमारा आग्रह है कि वे आगे आएं तथा खेलों के माध्यम से अपना करियर भी बनाएं तथा खुद को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त भी बनाएं। यही हॉकी के जादूगर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्तमान समय में हम सभी कोरोना जैसे महामारी के दौर में एक अनजाने मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसलिए आज के समय में खेलों का महत्व और अधिक बढ़ गया है ताकि हम इस मानसिक तनाव से उबर सकें। खेलों को हमें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है ताकि हम हर प्रकार से दुरुस्त और तंदुरुस्त रह सकें। अंत में आज के दिन में इतना ही कहना चाहूंगा, खेल कूद का करो विचार, यह देता है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable and inspiring words for all of us. Now, from the teacher's desk. Yes, you must be missing your teachers, all the teachers, the sight of all the teachers together. So, let me give you that platform through this National Sports Day occasion where you will be able to see all your teachers. बच्चों, मैं टीचर्स की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि हम आंखों से ओझल हैं, हम आंखों से ओझल है, दिल से दूर नहीं। हम आंखों से ओझल है, दिल से दूर नहीं। ये वक्त का तकाजा है, इसमें किसी का कसूर नहीं। हम तो खेल के दीवाने हैं, हम तो खेल के दीवाने हैं। हमारी ख्वाहिशों के उड़ान को मत रोकना। जब धूल पसीना हमें न रोक पाई तो क्या कर लेगा चंद दिनों का ये छोटा सा कोरोना। आइए सुनते हैं टीचर्स को। Respected Sri G.C. Chakraborty, Chief Guest of the Day, Honorable Principal, dear teachers and dear students. As you know that today we are celebrating National Sports Day in commemoration of birth anniversary of hockey wizard Major Dhyan Chand. The objective of the day is to spread awareness among the citizens of the country about the importance of games and sports in our daily lives. Whatever the circumstances are, we must spare some time for games and sports in our day-to-day life in order to stay healthy and fit. I wish all of you a good health and healthy life ahead. Thank you. Have a nice day. हालांकि पूरी दुनिया, पूरी जनमानस कोविड-19 के कारण अपने घरों में कैद रहने के मजबूर है। इस स्थिति में हम अपने आप को, अपने परिवार को, पूरे समाज को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं, यह एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है।
इस प्रश्न का एकमात्र समाधान है, एकमात्र जवाब है कि हम अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर अपने जीवन शैली में व्यायाम को शामिल करें और जहाँ तक संभव हो सके हम अपनी सहभागिता खेलों में प्रदान करें। यही एक उत्तम तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपने रचित कुछ पंक्तियों के द्वारा हम पूरे जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं जो इस प्रकार है। न साज हो न कोई काज, न साज हो न कोई काज, सबको दो एक ही आवाज़, सबको दो एक ही आवाज़, हो सुबह में व्यायाम से आगाज़, हो सुबह में व्यायाम से आगाज़, ना रहे कोई नाराज़, ना रहे कोई नाराज़, दो अपने पंखों को परवाज़, दो अपने पंखों को परवाज़, यही है तनाव मुक्त एवं स्वस्थ रहने का अंदाज और राज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। तरह तरह के खेलों का लोगों में करो प्रसार, यह करते हैं जीवन में नव शक्ति का संचार। नमस्कार। हम आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके ही जन्मदिवस को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने खेल जीवन के दौरान बतौर कप्तान उन्होंने भारत को हॉकी में 3 ओलंपिक पदक जिताए, जो कि वर्ष 1928, 1932 और 1936 में जीते गए। वह भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह तो बात हो गई खेल दिवस के बारे में, है ना। खेल जो है हमारे लिए शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर आज के वर्तमान परिस्थितियों में जब हम सभी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। नमस्कार। आज के समय में कोरोना महामारी के कारण परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं और हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं है कि परिस्थितियां कब तक सामान्य होंगी। आज पूरा विश्व इस बीमारी से लगातार जूझ रहा है। निश्चित ही मानव सभ्यता की विजय पुनः होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अतः इस बीमारी के दौर में खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खेलों की तरफ महत्व देना अति आवश्यक है। हम हमेशा हेल्थ और फिटनेस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने कई बार सुना है लोगों को यह कहते हुए कि हेल्थ इज वेल्थ। वास्तव में एक इंसान के लिए इसके सही मायने क्या हैं? सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जो अपने कार्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से सही ढंग से कर सके। परंतु आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें न चाहते हुए भी हम अपने कार्य को उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जैसे सामान्य दिनों में कर पाते थे। इसका हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हम स्वयं को एक अनदेखे बंधन में जकड़े पाते हैं। हमारी वर्तमान जीवन शैली वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। निश्चित रूप से आप बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आपकी दिनचर्या बिल्कुल सीमित हो गई है। ऐसे में आपके लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। सबने अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए अनेक बार सुना होगा कि स्वस्थ शरीर हजार नियामत, जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो वह 1000 वरदानों से बढ़कर है। जीवन का असली आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आज हम भले ही अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, परंतु हम विवश बिल्कुल भी नहीं हैं। हमने अपने लिए नए रास्ते खोजे हैं और उन रास्तों पर चलकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। खेलों के माध्यम से आप स्वयं को न सिर्फ मनोरंजित कर सकते हैं बल्कि इस कठिन परिस्थितियों में स्वयं को क्रियाशील भी बनाए रख सकते हैं। योग, प्राणायाम और विभिन्न खेलों के माध्यम से हम घर पर रहकर
स्वस्थ ही नहीं बल्कि दूसरों को प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। आज हमें उसी प्रेरणा की आवश्यकता है जो हमें सतत बताती रहेगी हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, सदा आगे बढ़ना है। जीवन में खुशहाली तभी होगी जब हमारा मन प्रसन्न होगा, और हमारा मन तभी प्रसन्न होगा जब हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होगा। और शारीरिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि हम खेलों के महत्व को समझें, खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं, उन्हें अपनी दिनचर्या में उसी तरह शामिल करें जिस प्रकार से हम अन्य कार्यों को करते हैं। खेलों के द्वारा ही हम एक बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर और संतुलित जीवन जीने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, और यह शारीरिक और मानसिक स्वस्थता हमें खेलों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भी कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य ही खुशहाली की पराकाष्ठा होती है। यह भी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अतः ये उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के लिए हम सभी को अपने दिनचर्या में खेलों को शामिल करना होगा, उन पर विशेष महत्व देना होगा, उन पर विशेष जोर देना होगा। अतः मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूँ कि आप खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके अनेक बीमारियों से दूर रह सकेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। Amidst this worldwide pandemic, we all have been forced to confine ourselves indoors, and the situation is that we are trying to acclimatize ourselves by working from home or by studying from home, and health and fitness has become an issue. So the main question that is posed before us today is how do we remain fit both physically and mentally in this depressing situation? And of course, the answer is regular exercise. As several studies say that physical exercise may play therapeutic role in addressing some psychological problem. Even the medical science research studies say that physical exercise has a positive effect on the depression. Physical self-worth and physical self-perception, including body image, has been linked to improved self-esteem. Fitness is not about being better than others, but being better than your presence. The need of the hour is to stay fit, both mentally and physically. Do not start exercises to compete with someone, but to remain healthy. Every day push yourself a little bit harder than yesterday. You can start with yoga and free hand exercises, which you can easily do within your home. We have to manage just 10 to 20 minutes from our hectic schedule. Students, teachers and parents all are indeed going through a lot of pressure. If we can manage a few seconds for ourselves, we can achieve a better mental state and fulfill our duties. During this pandemic situation, many people are suffering from depression. This is only lack of physical fitness. Physical fitness, everybody actively, very sincerely, one have to devote their time, morning or evening, whenever it is possible, to take part in yoga. I wish everybody should participate in this. Thank you. We are not sure that we'll be able to protect ourselves from being infected by COVID-19 or not, but we are taking different preventive and protective measures. Physical exercise and yoga must be added to that list.
According to medical researchers, exercise improves cardiovascular, cardiorespiratory, muscular fitness and metabolic health biomarkers, which is very important because COVID-19 seriously damages human heart. So, keep exercising. Better functional health, increased bone density and reduced symptoms of depression will lead us to a more safe life, and it can only be achieved by exercise. For beginners, it may seem impossible. They may feel muscle pain after a few attempts. Don't lose hope. Yes, muscle soreness is painful, but it's worth it. The pain you feel today will become your strength for tomorrow. If needed, consult with an expert and try to find out which exercises are very beneficial for you, and start doing those regularly. Within a few days, you will observe that you are feeling better. And if you lack interest in doing it, you can motivate your family members to join in. Once you see the outcome, it will surely become an addiction for you. Addiction to stay healthy is the best kind of addiction in the world. So, here from Kendriya Vidyalaya number 1 Kanjrapara family, we say stay healthy and stay fit and make others aware, because health is wealth. This Sports Day, we are celebrating health. Be an inspiration to your family and friends. Remember one thing, fitness is not a destination, it is a way of life. So students, I hope all of you will follow the tips and advices shared by all the teachers. Exercise regularly, stay fit, stay healthy and live happily.